तो देखिए, पश्चिम एशिया संकट पर ट्रंप का बयान आया। ईरान की सेना हमारे कंट्रोल में है, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। ईरान का रेजिम खत्म हो चुका है, ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका है, ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। खतरनाक मिसाइल बनाना चाहता था ईरान, तो पुरानी गलतियों को ठीक कर रहा हूं, हम लक्ष्य के बेहद करीब हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। तो देखिए, आगे अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये भी कहा कि गया है कि 2-3 हफ्तों में ईरान पर बड़ा कदम उठाएंगे, तो हमले और तेज किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। सुन लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा। As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did in taking the country of Venezuela in a matter of minutes. That hit was quick, lethal, violent, and respected by everyone all over the world. After rebuilding our military during my first term, we have by far the strongest military anywhere in the world, and now we're working along with Venezuela and are in a true sense joint venture partners. We're getting along incredibly well in the production and sale of massive amounts of oil and gas, the second largest reserves on earth after the United States of America. We're now totally independent of the Middle East, and yet we are there to help. We don't have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have. Tonight, I want to provide an update on the tremendous progress our warriors have made in Iran and discuss why Operation Epic Fury is necessary for the safety of America and the security of the free world. From the very first day I announced my campaign for president in 2015, I have vowed that I would never allow Iran to have a nuclear weapon. This fanatical regime has been chanting death to America, death to Israel for 47 years. Their proxies were behind the murder of 241 Americans in the Marine barracks bombing in Beirut, the slaughter of hundreds of our service members with roadside bombs. They were involved in the attack on the USS Cole, and they carried out the countless other heinous acts, including the just horrible, bloody atrocities of October 7th in Israel. वहीं महायुद्ध पर चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब जुड़ गए हैं। सहगल साहब, आपका बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। और सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आज बड़ी खबर, खुशखबरी आ सकती है अमेरिका से, अमेरिकी राष्ट्रपति सीज फायर को लेकर ऐलान कर सकते हैं, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कह दिया गया कि हमले तेज होंगे और तेज होंगे ईरान पर, और साथ ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। अमेरिका की तरफ से ये बयान जो है खासकर डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर है। स्टॉक मार्केट्स क्रैश होनी शुरू हुई है, अमेरिका के भी फ्यूचर मार्केट्स क्रैश हो गई है जी। फिर ऑयल प्राइसेस जो है और $5 पर बैरल बढ़ गई है। दुनिया की मुसीबत और बढ़ गई है। साफ तौर पे ट्रंप जो है इस एड्रेस के माध्यम से अपनी पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, जहां बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ विरोध हो रहा है।
फिर अपने एलाइज को कर रहे थे कि हम आपको किसी प्रकार से अकेला नहीं छोड़ेंगे और आपको हर प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे। नेटो को संबोधित कर रहे थे और साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑडियंस को भी। उन्होंने अमेरिका के अंदर से जो रिएक्शन है बड़ा जबरदस्त उनके खिलाफ। उन्होंने कहा कि शूमेकर जो है सेनेट मेजोरिटी लीडर है, उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की तरफ से बिगेस्ट ब्लंडर है। उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया है, उनकी एयरफोर्स को खत्म कर दिया है, नेवी को खत्म कर दिया है, उनकी मिसाइल की क्षमता को बहुत रिड्यूस कर दिया है, उनकी ड्रोन पावर को बड़ा रिड्यूस कर दिया है। तो अगर ये सब कुछ उन्होंने वास्तव में हासिल कर लिया तो फिर लड़ाई किस लिए कर रहे हैं? बिल्कुल। लड़ाई को खत्म क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने तो कहा कि लड़ाई जारी रहेगी और अगले 2-3 हफ्ते में और भी बड़ा हमला हो सकता है। ऐसे में दुनिया के में बहुत ही जबरदस्त नुकसान होगा। हमारे ऑयल प्राइस और गैस प्राइस तो बढ़ रही है, इसके अलावा दुनिया में भूखमरी हो जाएगी, क्योंकि 45% दुनिया का यूरिया और फर्टिलाइजर्स इस इलाके से आता है। दुनिया का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसके लिए हीलियम जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, 40 to 45% इधर से आता है। तो जो दुनिया की मेडिसिन है, हिंदुस्तान दुनिया का जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसका भी 40 to 45% रॉ मटेरियल यहाँ से आता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री है दुनिया की, उसका भी 40 to 45% यहाँ से आता है। ऐसे में फिर साफ तौर पे वो नेटो को कह रहे हैं कि देखो हमको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत ऑयल है गैस है, आप चाहे तो हमसे खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको इसकी आवश्यकता तो आप उसको खुद ब खुद खोलिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमें नहीं चाहिए, इस बात की का ऐलान आज फिर एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से किया गया। वो कह रहे हैं कि हमसे तेल खरीदिए, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन सर, क्या चीज़ ऐसी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को सीज फायर का ऐलान करने से रोक रही है? क्या उनकी ईगो मौजूदा स्थिति को लेकर बड़ी हो गई है? आपने भी जिक्र किया, हमने नो किंग्स प्रोटेस्ट भी देखा कि किस तरह से अमेरिका की बड़ी आबादी सड़कों पर उतर आई, क्योंकि जाहिर तौर पर बड़ा नुकसान तो अमेरिका को भी हो रहा है, अमेरिकी लोगों को भी हो रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इस युद्ध को खत्म करने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रहे। उनको साफ तौर पर नजर आता है कि इस समय अगर वो सीज फायर करेंगे तो वास्तव में ईरान की एक किस्म से जीत होगी, और अमेरिका के लोग जो है और यूरोप के लोग जो है और बाकी दुनिया साफ तौर पर समझेंगे कि इस अमेरिका डर गया लड़ाई से, और डर के हार एक किस्म से एक्सेप्ट कर लिया और लड़ाई से बाहर हो गया। लेकिन वो अपने लोगों को कह रहे हैं साफ तौर पे कि देखो, वियतनाम की लड़ाई 19 साल चली और इराक की लड़ाई 11 साल चली, अफगानिस्तान की लड़ाई 16 साल चली। ये ऐसी लड़ाई है जो कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में हम हर प्रकार से जीत रहे हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, असलियत कुछ और ही है। विद इन 15 मिनट्स ऑफ इनकी स्पीच खत्म होने पे थर्ड वेव मिसाइल तीसरी वेव दागी गई इसराइल के खिलाफ, और 19 ही मिनट के अंदर, स्पीच के 19 मिनट के बाद में यूएई के ऊपर बड़ा हमला हुआ। साफ तौर पे वहां के लोग कह रहे हैं, सेनेटर्स जो हैं जितने भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, वो साफ तौर पे कह रहे हैं लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य तो उन्होंने इनशिएट नहीं किया, एंड गेम क्या है वो भी इनशिएट नहीं किया। तो साफ तौर पे कहते हैं कि वास्तव में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कंफ्यूज स्टेट में नजर आते हैं। तौर पे कह रहे हैं कि हम हर प्रकार से जीत रहे हैं, लेकिन अगर हर प्रकार से जीत रहे हैं तो फिर लड़ाई किस लिए कर रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द इंटेंशन? और वो तो कह रहे हैं लड़ाई खत्म नहीं करेंगे, एपिक फ्यूरी जारी रहेगा और 2-3 हफ्ते में हम और बड़ा हमला कर सकते हैं। सर, इजराइल की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? ईरान की तरफ से साफ तौर पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है मिसाइलों के द्वारा वास्तव में हमारे पास क्षमता है बहुत बड़े पैमाने पर। जैसे कि मैंने कहा कि विद इन 15 मिनट्स 3 हमले हुए इसराइल के ऊपर, और 19 मिनट के अंदर एक हमला हुआ है यूएई के ऊपर। तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं ना तो आपके एलाइज बचे हैं और ना ही इसराइल बचा है, और हमारे पास बड़ी जबरदस्त ताकत अभी भी है हर प्रकार से आपको एलाइज के ऊपर और आपके सपोर्टिंग नेशन इसराइल है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो किस्म से बहुत ही उच्च दर्जे का एक किस्म से काउंटर नैरेटिव है जो ईरान की तरफ से दिया गया। उन्होंने बातचीत तो कुछ नहीं की, लेकिन जवाब दिया है। बिल्कुल, ईरान जो है अब वो जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और तुरंत इजराइल पर अटैक किया गया, जिस बात का सहगल साहब जिक्र कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के कुछ ही मिनटों बाद। अब जो IRGC है सर, वो कह रहा है कि अब जो अमेरिकी टेक कंपनीज हैं
पश्चिम एशिया में उनको निशाना बनाया जाएगा। बड़ी कंपनीज का जिक्र किया गया और आज सुबह ऐसा हुआ भी, पश्चिम एशिया के कुछ देशों में निशाना भी बनाया गया। तो इससे कितना नुकसान अमेरिका को होगा? पहले देखिए, पश्चिम एशिया के वो देश जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस थे उन्हें निशाना बनाया गया, तो नुकसान तो अमेरिका को भी पहुंच रहा है। पहले सैन्य बेस को निशाना बनाया गया, अब टेक कंपनीज टारगेट पर हैं, तो भी मानने को तैयार नहीं है अमेरिकी राष्ट्रपति। देखो, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, अमेरिका के मिडल ईस्ट में 30 बेसेस हैं। हाँ। 30 में 17 बेसेस तो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गए हैं, बाकी 13 बेसेस में भी बहुत नुकसान हुआ है। फिर अमेरिका की जितनी भी एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज को भी बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। इनके जो कुछ जो थे, जितने जगह पर लोकेटेड थे, वो किसी होटलों में छिपे हुए हैं, सेफ जगह पर छिपे हुए हैं, जिनके बारे में जिक्र नहीं किया जा रहा। जी। और अमेरिका की जो 15 बड़ी कंपनीज हैं जो मिडल ईस्ट में, ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि आज 1 अप्रैल से, दैट मींस यस्टरडे से, बहुत बड़े पैमाने पर उनके ऊपर हमले करेगा और उनको बर्बाद करेगा, जिससे अमेरिका की जितनी भी ताकत है मिडल ईस्ट के अंदर और बड़ी इन्फ्लुएंस है, उसको काफी से ज्यादा नुकसान होगा। उन्होंने बहुत, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एयरफोर्स को, एयर डिफेंस को खत्म कर दिया, लेकिन आए दिन उनके रिपर ड्रोन मारे जा रहे हैं, उनके F-35 को घेरा गया है, उनके KC-135 जो रिफ्यूलर्स हैं उनको बर्बाद किया गया है, उनके जो एवैक्स हैं और आईज इन द एयर हैं उनको बर्बाद किया गया है। तो अमेरिका को तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हर प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इतनी बड़ी सफलता हमने हासिल कर ली है जो आज तक कभी सफलता नहीं की। कहते हैं पुराने जितने प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बहुत गलतियां की, मैं उन गलतियों को सुधार रहा हूँ। और लेकिन सर जरा देखिए, मौजूदा जो स्थिति है, अमेरिका भी भुगत रहा है इससे मुश्किलें, इजराइल भी भुगत रहा है, अटैक तो हो ही रहे हैं इजराइल पर, लेकिन जिस तरह से तेल की कीमतें अचानक से बढ़ गई हैं, होर्मुज स्ट्रेट पर जिस तरह से ईरान का रुख है, हालांकि भारत को सहूलियत देता हुआ ईरान जरूर नजर आ रहा है, लेकिन भारत में भी महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है। आने वाले वक्त में लोगों के लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी, और क्या ये एक प्रेशर क्रिएट हो पाएगा अमेरिका पर, अमेरिकी राष्ट्रपति पर? देखो, जहाँ तक अमेरिकन के राष्ट्रपति हैं, ही इज अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। जब तक अमेरिका का ताल्लुक है, हमारे पास ऑयल और गैस बड़े बड़े पैमाने पर है। आपको अगर मुसीबत है तो ऑयल और गैस हमसे खरीदिए। फिर वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई के बावजूद $18 ट्रिलियन है अमेरिका के निवेश किया जा रहा है। जहाँ तक नुकसान है, खास करके एशिया है, ग्लोबल साउथ है, यूरोप के देश हैं और अमेरिका के जो एलाइज हैं, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, उनको, फिलीपींस, उनको बहुत ही जबरदस्त नुकसान हो रहा है। उनके प्राइसेस वहाँ पे आसमान को छू लिए, पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस बढ़ गई हैं और उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उनको मजबूरन रशिया से ऑयल एंड गैस खरीदना पड़ेगा, लेकिन रशिया के पास भी उतनी क्षमता नहीं रही जितनी उसके पहले थी। यूक्रेन ने तकरीबन 35 to 40% से ज़्यादा रशिया के रिफाइनरीज हैं, उनके ऑयल पाइपलाइन को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है या दुनिया का ताल्लुक है, मुसीबत बढ़ती जाएगी आए दिन, क्योंकि अगर आज हाइपोथेटिकली आज लड़ाई रुक भी जाती है तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर, रिफाइनरीज को, पाइपलाइंस को, स्टोरेज डिपोज को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, पोर्ट्स वगैरह को, तो उसको रिपेयर करने में कई साल लग सकते हैं। बिल्कुल सर, और देखिए इस नुकसान की भरपाई में आपने जिक्र किया बहुत लंबा वक्त लग सकता है, और ये युद्ध जो है वो पूरे पश्चिम एशिया को तो तबाह कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ पूरी दुनिया पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सहगल साहब, अलग थलग दुनिया में पड़ता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है, नाटो साथ नहीं है, यूरोप साथ नहीं है, सभी देश जो है बैकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं है। सलाह कौन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो इस युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है? और दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका पर दबाव बना सकते हैं इस युद्ध को खत्म करने को लेकर। सबसे बड़ा जो दबाव है अमेरिका की तरफ, अमेरिका के ऊपर, वो है गल्फ कंट्रीज है। क्योंकि गल्फ कंट्रीज में बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है जी। उनका ऑयल और गैस प्रोडक्शन खत्म हो गया, उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स को हिट करने उनके एनर्जी सोर्सेज को बर्बाद किया जा रहा है, बिजली के सोर्सेज को बर्बाद किया जा रहा है। उनके जो ट्रेवल एंड टूरिज्म जो था, बहुत बड़ा साधन था रेवेन्यू का, वो बर्बाद हो गया है। बड़े पैमाने पर मिलियनियर्स सारी दुनिया से वहाँ पे आके रहे थे कि सबसे सेफ जगह है, सबसे पीसफुल है, सबसे ट्रैंक्विल है, वो खत्म हो गया। फिर रियल एस्टेट में वहाँ पे लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनके फाइनेंस में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो सब कुछ खत्म हो गया। इसके अलावा यूरोप से की तरफ से, उनके एलाइज की तरफ से और ग्लोबल साउथ की तरफ से जबरदस्त प्रेशर है, और सबसे बड़ा प्रेशर उनके अपने अवाम से है। उनके साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि वहाँ पे तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वहाँ तो रिजीम चेंज हो गया है,
हमने आजादी से बड़े लीडर्स को बना दिया, लेकिन वो कह रहे हैं हम खुद ट्रम्प को चेंज कर देंगे। जी। वो नहीं चाहते हाँ। ट्रम्प कंटिन्यू करे। वो कहते हैं आने वाले नवंबर के इलेक्शन में हम इतनी बुरी तरह से ट्रम्प को पिछाड़ेंगे कि वास्तव में ट्रम्प को या तो इम्पीच हो जाएंगे या उनको मजबूरन एक किस्म से कम्प्लीटली लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और काफी अपने आप को समझते हैं कि आई एम द किंग, आई एम द लॉ। तो मैं सोचता हूँ वही सबसे सही है। और सर ट्रम्प यहाँ तक कह दे रहे हैं कि उन्हें ऑफर मिला है सुप्रीम लीडर बनने का ईरान के, हालांकि वो मजाकिया अंदाज में ये कहते हुए नजर आए। देखो ईरान इसका जवाब उनको मिसाइल के माध्यम से देता है। वो साफ तौर पे कह रहा है, पहली बात है वो रोज कहते हैं कि हमने एक किस्म से ईरान हमसे बेग कर रहा है डील के लिए। ईरान मध्यस्थता चाहता है। ईरान ने साफ तौर पे कहा ना ही तो हम कोई बातचीत कर रहे हैं, ना ही किसी प्रकार की मध्यस्थता चाहते हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि ईरान के एक लीडर हैं जो बड़े पैमाने पर फैसला ले सकते हैं सीज फायर के लिए। वो नाम बताइए कौन कौन से लीडर हैं। फिर पाकिस्तान ने, टर्की ने, चाइना ने, जापान ने कोशिश की कुछ किस्म की मध्यस्थता के लिए। ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि देखो हमको किसी प्रकार की मध्यस्थता एक्सेप्टेबल नहीं है। जहां तक पाकिस्तान की तो इंटरवेंशन या मध्यस्थता बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने डिफेंस डील की हुई है। ईरान और सऊदी अरेबिया के आपस में दुश्मनी है। किसी भी सूरत में इजराइल जो है पाकिस्तान की मध्यस्थता को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी। ईरान के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं अगाची, उन्होंने साफ तौर पे कहा है। अच्छा सर, देखिए बहुत सारे बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प देते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, 48 घंटे का अल्टीमेटम है, 10 दिन का वक्त देते हैं, लेकिन हमले लगातार जारी कर रहे हैं। जरा सोचने वाली बात एक बार फिर से यहाँ पर ये होगी कि ईरान इजराइल युद्ध के बीच आखिर अमेरिका कूदा क्यों? और आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका का लक्ष्य आखिर क्या है, क्या चाहता है अमेरिका? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो किसी भी लड़ाई को स्टार्ट करने से पहले जो सुप्रीम कमांडर होते हैं उनके 4 चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। बस इस लड़ाई से का मकसद क्या है, व्हाई हैव यू गॉन टू वॉर, आपका क्या मिलिट्री एम है, क्या पॉलिटिकल एम है। अभी तक जितनी भी स्टेटमेंट्स अमेरिका से आ रही हैं साफ तौर पे नजर आता है कि उनको ना तो मिलिट्री एम पता है ना पॉलिटिकल एम पता है। दूसरा कि आपकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी टू अचीव, जो आपका मकसद है उसको अचीव करने के लिए आपकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी क्या है, तक उनकी स्ट्रेटेजी भी डिफाइन नहीं की गई। तीसरा, उस स्ट्रेटेजी को कामयाब बनाने के लिए आपके पास किस पार्टी के रिसोर्सेज हैं, क्या आपकी ट्रूप्स ट्रेंड है, प्री पोजीशन है, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम तैयार है, उसमें भी बड़े 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 डाउट्स हैं। सबसे चौथा जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एंड गेम क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो इस लड़ाई के माध्यम से, व्हाट इज योर एंड गेम। तो लड़ाई को कैसे खत्म करना चाहते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अगर देखो शुरू में उन्होंने कहा हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, फिर उन्होंने कहा कि मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, फिर उन्होंने कहा रिजीम चेंज करना चाहते हैं। एक भी लक्ष्य अचीव नहीं कर पाएंगे ना इजराइल ना अमेरिका। 2 साल हो गए गाजा के अंदर हमास को, उन्होंने कहा था हमास के लिए उनके 3 लक्ष्य थे इजराइल के कि हमास को हर प्रकार से खत्म करेंगे, उनके वेपन उनको सरेंडर कराएंगे, नहीं हुआ। उन्होंने कहा था बंधकों को छुड़ाएंगे, इजराइल बंधकों को नहीं छुड़ा सका था। तीसरा, फ्यूचर गवर्नेंस में हमास का किसी प्रकार से हाथ नहीं होगा। 2 साल के बाद भी नन ऑफ दोज एम्स हैव बीन अचीव्ड। ईरान को उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अंडर एस्टिमेट किया, कंप्लीट मिस कैलकुलेशन थी। ईरान ने के लिए 40 साल से तैयारी कर रहा था, लेकिन साद और CIA उस तैयारी को समझ नहीं पाए किस बड़े पैमाने पर उनकी तैयारी थी। फिर उनको लगा कि हमने टॉप लीडरशिप को बर्बाद करते हैं तो ईरान बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने 20 साल स्टडी किया। जब सद्दाम हुसैन को मारा गया तो वहां रजीम कोलैप्स हो गई, जब गद्दाफी को मारा गया तो वहां रजीम कोलैप्स हो गई, जब असाद भाग गए मॉस्को तो वहां रजीम कोलैप्स हो गई। बिल्कुल सर, और देखिए हम अगर इसको कहें कि ईरान को हल्के में ले लिया अमेरिका ने और यही उस पर भारी पड़ रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बैकआउट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये युद्ध कहाँ जाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन वैश्विक तौर पर जरूर संकट के बादल मंडराते हुए। बहुत शुक्रिया PK सहगल साहब, आप हमारे साथ शामिल हुए इस चर्चा में और जनता तक बहुत महत्वपूर्ण बातें पहुंचाई है।